تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چھٹا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الیوم یہاں پر واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ۔ لکم یہاں پر تو مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور با میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر وقف کریں گے تو تا کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اليوم احل لكم الطیبات۔ وتعا تو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور عام الف مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ملذین یہاں پر لام مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ او میں واو مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تل یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ کتابی تا میں کھڑا زبر ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حلل یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لکم یہاں پر صاد ہے، یہاں پر وقف ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور ایسے وقف بھی کر سکتے ہیں، رخصت ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ وَطَعَا تو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، عام الف مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ حِلٌّ لَهُمْ یہاں پر لل میں ادغام تام ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جیسے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ ول یہاں پر لام ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ محصنات صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے نون میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منل یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ مؤمنات یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا اور نون میں کھڑا زبر، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ول یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ محصنات صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے نون میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من الذین یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اوتو یہاں پر واو مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تا میں کھڑا زبر ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من کے نون میں اخفا ہو رہا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قبلکم قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، با میں قلقلہ کریں گے۔ کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اذا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آتیتموہن حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تئی میں یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ منہ میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہنہ میں نون مشدد ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ وجوہ میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، ہنہ میں غنہ ہوگا۔ محسنین صاد کو پر پڑھیں گے، نیم یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غیرہ غین کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا لین ہے، اس میں نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے۔ مصافحین سین میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہے میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ متخذی خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اخدان خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا دو زیر کے سکون، دو زیر کی جو تنوین و سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
वमई, मई में देखिए नून साकिन के बाद या है हरूफ यूमिन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा, नून को या से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। यकफुर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। बिल ईमानी, ई में या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़क़द, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है, दाल में कलकला होगा। हबित, तो को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है। अमलु, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हा का उल्टा पेश सुकून से बदल जाएगा, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु वहुवा फिल, यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ फा से मिलकर पढ़ा जाएगा, या को नहीं पढ़ेंगे। आखिरी ना हमजा में खड़ा ज़बर, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खौ को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। मिनल, यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ नून से मिलाकर पढ़ेंगे। खौ को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है और खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। री में रॉ को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी मद्दा आरिज़ वक्फ़ी होगा। इसमें तुल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ होता है। तुल उला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसर का मरतबा होता है। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, या में जो मद है मद मुत्तसिल, इससे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अय्युहल्लज़ीना, यहाँ पर लाम मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ हाथ से मिलकर पढ़ा जाएगा। ज़ालिक, लदीना में दाल को बारीक पढ़ेंगे, या मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आमनू में हमज़ा में खड़ा ज़बर, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नू में जो मद है मद मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इदा में अलिफ मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कुमतुम, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से। मीम, ये दोनों मीम साकिन जो है इसमें इजहार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। इलस्सलाति, सौद जो कि मुशद्दद हर्फ है तो ये पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। सौद को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से, लाम में खड़ा ज़बर, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव में कोई हरकत नहीं है, वाव को नहीं पढ़ेंगे। फ़ग़सिलू, गैन साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ फा से मिलकर पढ़ा जाएगा। लू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उजू में जू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हकुम की मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। व आई यालीन, इसे जल्द पढ़ना है। दिया कुम, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। इलल मराफ़िक़, लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। मराफ़िक़, रॉ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ाफ को यहाँ पर पुर पढ़ेंगे। वमसहु, मीम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा। हू में वाव मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिरुऊसिकुम, रॉ को पुर पढ़ेंगे, ऊ में वाव मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सिकुम, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। व अर्जुलकुम, रॉ को पुर पढ़ेंगे, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। इलल काबैनी, लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। काबैनी, यहाँ पर या लीन है और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्देलीन आरिज़ होगा। मद्देलीन आरिज़, इसमें तुल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ होता है, लेकिन वो कसर बेहतर होता है, उला है, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। व इन के नून में इख्फ़ा होगा, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। कुंतुम के नून में भी इख्फ़ा हो रहा है, तुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, से जल्द पढ़ना है। जुनूबन, बन में भी की तनवीन में भी इख्फ़ा हो रहा है, इसकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फ़त्तहरु, तो मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ फा से मिलकर पढ़ा जाएगा। तो को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है, और रॉ को यहाँ पर पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, व इन के नून में इख्फ़ा होगा, कुंतुम के नून में भी इख्फ़ा होगा, दोनों की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद यहाँ पर मीम है तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा, मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़ौद को भी पुर पढ़ेंगे। खड़ा यहाँ पर जो मद या मद मुनफसिल, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। औ में वाउलीन से जल्द पढ़ना। आला में लाम में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सफ़रिन, रॉ को बारीक पढ़ेंगे और इस तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। औ में वाउलीन से जल्द पढ़ना। जा में जो मद है मद मुत्तसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अहदुम,
दुम में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मिनकुम के नून में इख्फा हो रहा, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। कुम यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो यहाँ पर इख्फा इदगाम शफवी होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मिनल गाइति गैन को पुर पढ़ेंगे, रुफ़ मुस्तालिया में से है और ये मध्य मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इतनी तो को पुर पढ़ेंगे। औ में वालीन से जल्द पढ़ना, ला में खड़ा ज़बर से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तुमुन यहाँ पर नून मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा और नून मुशद्दद है तो गुन्ना होगा। असा में जो मध्य मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फलम के मीम में ज़ार शफवी हो रहा से जल्द पढ़ना। तजिदू दू में वाव मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। मा अन में अलिफ मद्दा से 1 अलिफ के बराबर, मा अन यहाँ पर जो मध्य मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन की तनवीन में इख्फा हो रहा, तनवीन के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फतयम्ममू में मुशद्दद गुन्ना होगा, मुंह में वाव मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। सईदन सौद को पुर पढ़ेंगे, रुफ़ मुस्तालिया में से ई में या मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। दन के तनवीन में इख्फा हो रहा, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तय्यिब बन तो को पुर पढ़ेंगे, रुफ़ मुस्तालिया में से बन की तनवीन में इख्फा हो रहा, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फमसहू मीम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक फा से मिलकर पड़ जाएगा। खूब में वाव मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। बी उजूहिकुम जो में वाव मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुकुम मीम में इज़हार शफवी हो रहा, अयदियकुम या लीन है इसे जल्द पढ़ना है। दीकुम में या मद्दा से 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। कुम में इदगाम शफवी हो रहा है, इसे गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मिनहु नून में इज़हार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वइन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। माँ में अलिफ मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यूरी रा को बारीक पढ़ेंगे, या मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अल्लाह में को दाल से मिलाकर पढ़ेंगे, मुशद्दद हर्फ है। खड़ा ज़बर इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिया जाला जिम में कलकला होगा। अलैकुम यहाँ पर लिया ली ने इसे जल्द पढ़ना है। कुम के मीम में यहाँ पर इदगाम शफवी हो रहा है, इसे गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मिन के नून में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। हौराजिन रा को पुर पढ़ेंगे, जीव में इदगाम नाक़िस हो रहा है, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। वाला ला में खड़ा ज़बर इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। की यहाँ पर इदगाम नाक़िस होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। यूरी रा को बारीक पढ़ेंगे, या मद्दा इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लियो तोहिरकुम तो को पुर पढ़ेंगे, रुफ़ मुस्तालिया में से रा को भी पुर पढ़ेंगे। कुम के मीम में ज़ार शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। वलियुतिम्मा में मुशद्दद गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। निअमतहू हा उल्टा पेश है, इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैकुम में यालीन इसे जल्द पढ़ना है। कुम के मीम में ज़ार शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। लअल्लकुम के मीम में ज़ार शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। तशकुरूना और रा को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव मद्दा है। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्दा आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून।